देखो बेटा, नेक्स्ट मेयर्स रिलेशन, इंपॉर्टेंट वन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना, प्रूव करना। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ बेटा consider n mole of an ideal gas be enclosed in a cylinder fitted with a massless and frictionless piston as shown in figure। तो आ बेटा साडे कोल एक सिलेंडर है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਮਾਸਲੈਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ n ਮੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ। let this gas be heated at first of all at constant volume। तो मान लो ये गैस ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਔਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬੇਟਾ, dQV, ਹੀਟ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ P, ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ V, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ T, है ना। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ V ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ T plus dt। मतलब dQ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ dt ਅਮਾਉਂਟ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ using first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw। now here at constant volume तो हीट कितनी सप्लाई की थी, dqv। तो du प्लस pdv जीरो है, क्यों, क्योंकि वर्क डन pdv है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dv जीरो होने करके pdv भी जीरो है तो dw जीरो है। तो ਇਹਦਾ मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिन्नी हीट मिली है उन्हें इंटरनल एनर्जी नो इंक्रीज करता है ना। बट पर कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ बट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। तो NCV dt है ना, therefore du is equal to NCV dt, नंबर 1। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n ਮੋਲ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, dQV, और प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम V रहा, टेम्परेचर T plus dt हो गया, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई NCV dt। अच्छा नाउ हुण ये जिहड़ी सेम गैस है ना बेटा, इस सेम गैस नूं आपां हुण हीट करना वा एट कांस्टेंट प्रेशर P। हुण उहदे लई आपां कितनी हीट दित्ती, dQP। और कांस्टेंट प्रेशर ते जदों आपां n मोल ऑफ आइडियल गैस नूं हीट कीता तां उस केस दे विच प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होया है ना,
वॉल्यूम चेंज होना ते वॉल्यूम चेंज हो गया तो टैंपरेचर अगेन ख्याल की रखिया बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n ਮੋਲ ਆਫ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ dt ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ dt ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਿੰਗ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो dq is equal to du plus dw तो here at constant pressure dq तो है dq p is equal to du plus pdv है ना जेड़ा v डैश है वो ਆਪਾਂ v plus dv लिखता ना small change in volume this one but ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n cp dt ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ n cp dt ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ cv ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ 1 by n dq dq v over dt है ना इस करके dq v कितना हो जाता बेटा n cv dt आइडियल गैस ਲਈ ਨਾ ਤੇ cp ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ 1 by n dq at constant pressure by dt ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ dqp ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ n cp dt therefore n cp dt is equal to du plus pdv ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਮਰਜੀ ਹੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ इस डायग्राम च गैस n मोल है आइडियल गैस और हीट हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे और ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ dt ਜਦ ਕਿ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਵੀ n ਮੋਲ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ dt ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ that must be same और सेम होने का मतलब है कि जिन्नी पहले केस च सी एनसीवी dt दूसरे केस च भी सेम होनी चाहिए तो एनसीपी dt pdv because change in internal energy of an ideal gas depends on its amount and change in temperature और क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम ते भी अमाउंट सेम है कांस्टेंट प्रेशर नाल ते चेंज इन टेंपरेचर भी कांस्टेंट वॉल्यूम ते कांस्टेंट प्रेशर ते सेम है इस करके सेम आ गए अच्छा बट आइडियल गैस ਲਈ पीवी ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ nRT ਹੁਣ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लेफ्ट साइड ते प्रेशर कांस्टेंट होने करके सिर्फ वॉल्यूम इको ही वेरिएबल है वो बन जाना पी डीवी इज इक्वल टू एन आर कांस्टेंट्स है dt तो ये आप इथे पुट करता तो एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी बी डी टी प्लस एन आर डी टी ਹੁਣ एन डी टी कैंसल आउट हो गया पुत्र तो cp माइनस cv इज इक्वल टू r ये फार्मूला डिराइव हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स है उन्हों का रिलेशन आ गया डिफरेंस आ गया रादर
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और इनू मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये गल क्लीयर हुई बेटा तुहानू? यस सर। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इनू एज सच याद कर लेना। नाउ हुन देखो, हुन बेटा limitations of first law of thermodynamics। तो limitations of first law of thermodynamics के अंडर बेटा सब तो पहला देखो, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे अकॉर्डिंगली कोई भी जो फिनोमिना है, कोई भी जो प्रोसेस है, वो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ नहीं करता। पर प्रैक्टिकली ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ बेटा कि ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ है ना, दोनों प्रोसेसेस ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। पर ये फर्क क्यों है कि कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ਇਹਦੀ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नहीं है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਤੋਂ ਹੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे ਹੁੰਦਾ ਵਾ। पर ਤੁਸੀਂ ਕੀ नोट ਕਰਦੇ ਆ कि वर्क अपने आप हीट च कन्वर्ट हो जाएगा, बट हीट अपने आप विदाउट या बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प दे अपने आप वर्क च कन्वर्ट नहीं होंदी। ਇਹਦਾ आंसर क्यों नहीं होंदी, जबकि हीट ਜਦੋਂ वर्क च कन्वर्ट हो रही है या वर्क हीट च कन्वर्ट हो रहा, दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी है। फर्स्ट लॉ ਜਿਹੜਾ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट लॉ ਜਿਹਦੇ ਤੇ बेस्ड है, वो फॉलो होना वा, ओबे होना वा। पर फिर भी हीट अपने आप वर्क च क्यों नहीं कन्वर्ट होंदी, वर्क अपने आप हीट च क्यों कन्वर्ट हो जाता। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्क 100% हीट च कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा वर्क हीट बन सकता है, पर सारी दी सारी हीट वर्क च प्रैक्टिकली क्यों नहीं कन्वर्ट होंदी। तो ਇਹਦਾ आंसर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोल नहीं है। ठीक है, तो हुन इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਟਲ ਬਾਕਸ ਹੈ, दीवार दे नाल एक मेटल बॉक्स, दीवार दे नाल मेटल बॉक्स फिक्स्ड है। हुण ये जिहड़ा मेटल बॉक्स है दीवार दे नाल फिक्स्ड है ना, तुसी बुलेट फायर कीती, बुलेट दे कोल मैकेनिकल एनर्जी है, काइंड ऑफ वर्क है ना। ये बुलेट जदों इस मेटल बॉक्स दे नाल टकराएगी तो ये बुलेट ने रुक जाना, ਇਹਦੇ ਚ ਐਮਬੈਡਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਸ ਜਾਣਾ, ਤਸ ਕੇ रुक गई। तो ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ मैकेनिकल एनर्जी मेटल बॉक्स ਦੀ हीट ਚ मतलब गर्म कर देगी ना मेटल बॉक्स ਨੂੰ, तो वो हीट ਚ कन्वर्ट होगी सारी दी सारी। तो हुण पर जे मान लो जिन्नी बुलेट दे रुकन ते हीट मेटल बॉक्स च पैदा होई सी बेटा, अगर आपां उन्नी हीट बाहरों मेटल बॉक्स ਨੂੰ सप्लाई कर दईए ਤਾਂ क्या ये बुलेट अपने आप निकल के फिर चलन लग पेगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है, इदा नहीं होना। मतलब बुलेट चलती बुलेट अपने आप रुक के उदी मैकेनिकल एनर्जी सारी हीट च कन्वर्ट हो सकती है, पर अगर रुकी हुई बुलेट नू मेटल बॉक्स दे अंदर उन्नी ही हीट दे दी जाए तो क्या वो बुलेट चल पाएगी? नहीं। तो इदा क्यों नहीं होएगा? तो इहदा आंसर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोल नहीं सी, जिस करके ये लिमिटेशंस च आ जांदा।